Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Human circulatory system is responsible for transport of nutrients, oxygen, minerals and water to all cells of the body, while waste product and carbon dioxide is taken away from all cells so that they can be removed from our body. If you talk about the human circulatory system consists of one heart and blood vessels. Three types of blood vessels are present: arteries, veins and capillaries, and blood. So before discussing all these things in detail, first we are going to discuss about the blood. First part of the human circulatory system is blood. Blood is a red color fluid that circulates throughout the body. ये जो blood है ये एक red color का है, जैसे आप कहीं इंजरी वगैरह होती है तो एक red color का fluid आपकी body में से बाहर आता है. That is basically the blood, and it flows in the specialized vessels. Those vessels are known as blood vessels, like arteries, veins and capillaries, and it is responsible for the transportation of the substances like oxygen, carbon dioxide, nutrients, minerals, water. It is a connective tissue. It is not the cells, it is a connective tissue, and it is having two components. One is plasma and another one is blood cells. Blood cells are further divided into three parts. Now, as I told you, blood is having two entities. First one is plasma and second one is blood cells. Blood cells are further divided into three. One is the RBCs, red blood cells, WBC, white blood cells and platelets. First we are talking about the plasma entity. Plasma entity is a straw colored fluid and it contains 92% of water. Rest 8% is having dissolved nutrients like protein, but plasma acts as a medium for the blood cells to travel. Blood cells are classified into three RBCs. RBCs are also known as erythrocytes. They are biconcave in shape and no nuclei is present in these RBCs. Contain a red color pigment that is known as hemoglobin. How this RBCs work, that I am going to discuss after this. Next is WBC. WBC is the white blood cells. White blood cells is also known as leukocytes. It is a colorless blood cells, less in number as compared to RBCs, and its structure contains the nuclei, while the RBC structure does not contain any nuclei. It protects the body from harmful foreign substance. Leukocytes are further classified into two. One is granulocytes and another one is agranulocytes. Granulocytes contains the cytoplasmic granules. Based on that, it is classified further into three parts. First one is eosinophils, second one is basophils, third one is the neutrophils. Agranulocytes cytoplasm does not contain granules. It is divided into two. First one is lymphocyte and another one is the monocyte. Now the third part of the blood cell is platelets. Platelets is also a colorless blood cells. Its major role is blood clotting, which helps during the injury. How these platelets and erythrocytes work, that we are going to discuss now. Different human blood cell structures are shown. देखो, अभी आरबीसी में मैंने बताया था कि एक रेड कलर का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है. सो दिस रेड बाय सर्कुलर टाइप शेप दैट यू हैव सीन, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है, दैट इज बेसिकली द हीमोग्लोबिन. वो क्या है? हीमोग्लोबिन है. अब वो हीमोग्लोबिन जो ये ब्लू कलर के आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, that represents the oxygen. Now this hemoglobin, when reacting with this oxygen, it produces ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है जो लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट तक कैरी की जाती है. नाउ हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का पिगमेंट है, जो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ये बॉडी के सारे पार्ट्स से कलेक्ट ट्रांसपोर्ट होकर के आता है कहां तक, लंग्स तक। फ्रॉम द लंग्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी एक्सहेल आउट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द नॉस्ट्रल्स, और जो आपका इम्प्योर ब्लड है दैट गोज टू द हार्ट, वो आपके हार्ट में जाता है। दैट वर्किंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस द हार्ट। दिस इज हाउ द आरबीसीज वर्क्स व्हेन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड carbon dioxide. Next we are going to discuss how the platelets works during the injury. Platelets जो है वो इंजरी के टाइम किस तरीके से काम करता है, जब हमें कहीं चोट लगती है तो वहां से ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। दिस इन दैट केस जो आपका वाउंड है उस साइड पर एक्सेसिव ऑफ प्लेटलेट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। वहां पर आपको दिखाया हुआ है रेड कलर जो है दैट इज बेसिकली द आरबीसीज, वो क्या है, ब्लड है आपका, और उसके साथ जो कलरफुल सब्सटेंस जो दिखाया हुआ है दे आर प्लेटलेट्स हैं, और वो वाउंड वाली जगह जहां आपको चोट लगी है वहां पर काम करेंगे और उस ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करेंगे, और एक फिब्रिन करके सब्सटेंस जो है वो जनरेट करेंगे जो हेल्प करता है, जो क्या होता है आपका ब्लड क्लॉट। दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स वर्क्स। दिस पिक्चर शोज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स परसेंटेज। Plasma is having the highest percentage in our blood and it contains approximately 55% of our blood. Next major component is RBCs. RBCs is having 44% component in our blood and almost equal to 1% consist of white blood cells and platelets, or you can say less than 1% is white blood cell and less than 1% is platelets. Now the next we are going to discuss about the blood vessels. Blood vessels are a tube like structure like pipe, योर वाटर पाइप, उस पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ all the substances in our body. They are classified into three categories. First one is arteries, second one is veins, and third one is capillaries. First we are talking about the arteries. Arteries carry blood from heart to all part of the body and it generally carry the oxygenated blood. Oxygenated blood का मतलब होता है when the blood is carrying the oxygen with it. जब ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा हो उसके साथ तो उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी आर डिस्कसिंग द हार्ट। जब हम हार्ट डिस्कस करेंगे, मींस ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज हैविंग थिक वॉल्स and valves are not present in the arteries. The picture or diagram, the detailed diagram of the artery is shown below. Now the next is veins. Veins carry the blood towards the heart from all part of the body. देखो हार्ट से बॉडी के सारे सेल्स तक ब्लड को पहुंचाना, बॉडी के सभी सेल्स तक ब्लड को पहुंचाना हार्ट से, वो काम है आर्टरी का। अब बॉडी के हर एक सेल से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, वो काम है किसका, वेन्स का। जब बॉडी के हर एक सेल से हार्ट तक जो ब्लड पहुंचेगा वो हमारा कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। इट वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, वाइल एक्सेप्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वाइल इन द केस ऑफ आर्टरीज pulmonary artery carry the deoxygenated blood. Veins are having the thin walls as compared to the arteries, and in the veins valves are present and the structure of the vein in detail is shown below. Next is the capillaries. Capillaries carries both oxygenated blood and deoxygenated blood, and it carries the blood from arteries to veins. ठीक है, कैपिलरीज ऐसी चीज है जो आपके ऐसी ब्लड वेसल्स हैं
जो आपके ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स। कहीं ना कहीं तो आर्टरीज और वेन्स भी आपस में कंबाइन होंगी, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। It carries both oxygenated and deoxygenated blood and their thickness is of one cell. उनकी thickness जो होती है वो किसके बराबर होती है? one cell के बराबर होती है। And in capillaries also valves are not present. Valves इसमें भी present नहीं होती। So valves are only present in the veins. Next, the diagram for blood vessels are shown. The red color is shown for the artery and the veins. How you are differentiating them? In the artery, no wall is present, as I told you before, while in case of vein, valves are present. On that basis, you can classify that this is the artery and this is the vein. The artery is further divided into arterioles, and arterioles are further divided into capillaries, which connect with the artery with the veins. Now the vein is divided into venules, and venules are connected to the capillaries. This explains the blood vessels completely. Next we are going to discuss about the blood groups. देखो, जब हमने blood cells discuss किया था तो उसमें WBCs जब डिस्कस किए थे तो मैंने वहां पर एक चीज बताई थी कि WBC जो है वो एक प्रोटीन जनरेट करता है, और वो प्रोटीन जो है वो हमें फॉरेन बॉडीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, या WBC जो है वो हमें फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो द प्रोटीन that helps in fighting against the foreign substance, that protein is known as antibodies, and that is present in WBC. ठीक है, WBC इस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, एंटीजेंस। वो प्रोटीन्स हैं that is responsible for the production of these antibodies. अब ऐसा नहीं है जो एंटीजन है वो हर एक टाइप का एंटीबॉडी जो है वो जनरेट कर सकता है। Specific type of antigen is evoking the special type of antibodies. Depending upon that combination कि कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी को जनरेट करेगा, उसके बेसिस पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन किया गया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। बट this antigen is present on the surface of RBC. RBC जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। वो किसमें प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंड एंटीजन ए जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है दैट इज इवोकिंग द एंटीबॉडी बी। वो किसको जनरेट करता है? इवोक करता है एंटीबॉडी बी को। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप बी, इन द ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी इज प्रेजेंट एंड एंटीजन बी इवोक्स द एंटीबॉडी ए। नाउ द नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर दोनों टाइप के एंटीजन्स जो है वो प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी। तो उस केस में एंटीबॉडी जो है वो कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ लिखे एंटीबॉडीज ए एंड बी। नाउ this is the classification based on the antigen present on the surface of the RBC and antibody that is present in the plasma. But not only this, सिर्फ यही बेस नहीं है क्लासिफिकेशन का, the next base is RH group. Next blood grouping is RH blood grouping. RH is basically representing the rhesus, and this is a protein that is also present on the surface of RBC. Present on the surface of RBC. The person in which this RH is present, that person is said to be positive. If it is present, then that person is said to be positive, and if it is absent, then it is said to be negative. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव। अगर ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, आरएच क्या है? बेसिकली रिहेसस है। दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी पर्सन के अंदर
वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो देन दैट पर्सन इज सेड टू बी पॉजिटिव, उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है। एंड इफ this is not present in the surface on the surface of RBC, then it is said to be नेगेटिव पर्सन, तो उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव पर्सन कहा जाता है। अब होता क्या है कि अगर एक नेगेटिव पर्सन जो है वो ऐसे पर्सन से ब्लड रिसीव कर ले जो कि पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव पर्सन अगर पॉजिटिव पर्सन से ब्लड रिसीव करेगा तो उस केस में नेगेटिव पर्सन की जो बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश करेगी अगेंस्ट दिस आरएच, इस आरएच के अगेंस्ट क्या करेगी, वो एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश करेगी एंड दिस विल कॉज अ मेडिकल एडवर्स इफेक्ट, और उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, मेडिकल एडवर्स इफेक्ट होगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज ब्लड ग्रुप्स we are going to discuss the blood transfusion. Now blood transfusion क्या है, blood transfusion है एक मेडिकल प्रोसीजर जिसके अंदर एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट करता है ऐसे पर्सन को जो किसके अंदर है, जिसको ब्लड चाहिए, नीड ऑफ ब्लड की जिसको रिक्वायरमेंट है। जो हेल्दी पर्सन ब्लड जो है वो दे रहा है that person is known as donor, उसको क्या कहा जाता है, डोनर कहा जाता है। और पर्सन जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है that is known as recipient, that person, the person who is in the need of blood, that person is known as recipient, उसको कहते हैं recipient। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लड ग्रुप, जैसे ए पर्सन का मतलब कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, वो किसी और दूसरे ब्लड ग्रुप को ऐसी ब्लड ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों पर्संस का जो ब्लड ग्रुप है दैट शुड बी कंपैटिबल, वो क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो कंपैटिबल नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट हैपनिंग, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। अब कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड जो है वो दे सकता है। नाउ द ब्लड ट्रांसफर कंपैटिबिलिटी, देखो ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड दे देगा। जब हम जनरली बात करते हैं तो हमारे ब्लड ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जो भी है हर एक को अपना ब्लड ग्रुप पता भी होता है कि कौन सा है। नहीं है तो आप मेडिकल टेस्ट से पता भी लगा सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा। अभी मैंने बताया था क्यों नहीं दे सकते। अब बात आती है कि ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स में कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। देखो ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ वाला ओ को ब्लड दे सकता है। ठीक है, हम सेल्फ ग्रुप में तो ब्लड दे सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है, ए वाला बी को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता। सो ए वाला बी को ब्लड नहीं दे सकता, ए वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। तो ए बी जो है वो क्या करता है, सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। दैट्स व्हाई ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। ठीक है, नाउ अब ओ जो है वो हमारा ब्लड डोनेट कर सकता है ए बी को, ओ जो है वो हमारा ब्लड दे सकता है ए बी को, ओ जो है वो ब्लड दे सकता है ए को, ओ जो है वो ब्लड दे सकता है बी को। तो इट मींस ओ ब्लड ग्रुप जिसका है दैट ब्लड, वो ब्लड ग्रुप अपना सब ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। ए बी वाला किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है। सो ओ वाला सभी ब्लड ग्रुप्स में ब्लड दे सकता है, देयरफॉर ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। अब यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये नहीं है कि ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड दे दे या ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को ब्लड दे दे, वो नहीं हो सकता।
RH ब्लड ग्रुपिंग जो है दैट शुड ऑल्सो मैच, वो भी मैच होनी चाहिए कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव को ही देगा। द नेक्स्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम is heart. Now, the heart. Detailed description of heart picture is shown on the right hand side of the board. Heart is a muscular organ that pumps the blood from heart to all parts of the body. ठीक है, which pumps blood to all parts of the body. Now, on the right hand side, you clearly see that human heart is a 4-chambered heart. 2 chambers are upper chambers and 2 are the lower chambers. The upper chambers are marked with right atria and left atria. The singular form of atria is known as atrium. Upper chamber is known as atria and lower chambers are known as ventricles. Now, upper chamber name is atria and the lower chambers are called as ventricles. And these 2 chambers are left and right. So, the left part of the upper chamber is known as left atrium and the right chamber, upright upper chamber is known as right atrium. Similarly, left lower chamber is known as left ventricle and the right lower chamber is known as right ventricle. Next, we are going to discuss the different veins and the arteries that are coming to the heart or that are going away from the heart. The first one, that is the main artery, is aorta. Aorta is the main artery of the heart and it carries the oxygenated blood. 3 valves on the upper top of the heart in the heart structure is shown. Next is pulmonary artery, only artery that carries the deoxygenated blood, and it carries the blood from heart to lungs. In this heart there is a carbon dioxide. Now, the next is vena cava. Vena cava is the main vein. Like aorta is the main artery, similar case, vena cava is the main vein that carries the deoxygenated blood. This vena cava, main vein, is divided into further 2 parts, that is superior vena cava and inferior vena cava. Superior means it carries the blood, deoxygenated blood. Vena cava is a vein, so it carries the deoxygenated blood. It carries the deoxygenated blood from the upper part of the body to the heart. Body के upper part में से, upper part जो है body का, वहां से ये deoxygenated blood को लेकर के आती है heart तक. Similarly, like inferior vena cava बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर के. नाउ द नेक्स्ट इज द पल्मोनरी वेन. इट इज द ओनली वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट्स कैरीज फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. ठीक है, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. कहां से? हार्ट से लेके जाती है लंग्स में. लंग्स में गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है, and after the gaseous exchange, that oxygenated blood is coming to heart from the lungs through this pulmonary vein. And these all aorta, pulmonary artery, vena cava. Vena cava में भी स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियरली मार्क है कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. now last one is the pulmonary vein. ठीक है, ये सारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये मतलब हार्ट से डायरेक्टली जो है दैट दे आर कंबाइंड. नाउ इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस ब्लड फ्लो हैपेंस. ब्लड कॉन्टिन्यूअसली फ्लोज इन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो अभी फ्लो कर रहा है थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. एज अवर हार्ट इज कॉन्टिन्यूअसली पंपिंग द ब्लड, सो ब्लड कॉन्टिन्यूअसली फ्लोज इन द बॉडी. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दैट आर पॉसिबल, दैट आर हैपनिंग इन अवर बॉडी. दे आर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक फ्लो. Pulmonary circulation happens from heart to lungs. Heart to lungs happen होता है and from lungs to heart only. In pulmonary circulation, the blood flows from heart to lungs and lungs to heart. In case of systematic flow, blood flows from heart to body organs and from body organs to heart. There are 2 types of circulation. First one is the pulmonary circulation and second one is the systematic flow.
पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो सिर्फ हार्ट से लंग्स तक जाएगा और लंग्स से हार्ट तक आएगा। इन केस ऑफ सिस्टमैटिक, blood flows from heart to body organs and from body organs to heart. Now we are going to discuss how this circulation is happening in our body. पहले मैं मार्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। जो ब्लू कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ फ्रॉम द बॉडी के हर एक सेल से वेना केवा के थ्रू, और जो रेड कलर की मार्किंग है वो शो कर रही है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ फ्रॉम द बॉडी के हर एक सेल से वेना केवा के थ्रू ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सेल्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। जब वो फंक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जो है वो कैरी होती है दिस वेना केवा से राइट आर्टरी में। फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक वो ब्लड जो है वो लेकर के आती है सुपीरियर वेना केवा, एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। आप देखोगे दोनों वेना केवास की ओपनिंग जो है, इंफीरियर वेना केवा की और सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग है राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास होता है राइट वेंट्रिकल में, और ये पास होता है थ्रू वॉल्व्स। There are two valves that are present between the right atrium and right ventricle. If you see clearly in this picture, right hand side वाली पिक्चर में, ठीक है, उसके नाम भी वहां मेंशन है। The two valves are that are marked between, that are present between right atrium and right ventricle are tricuspid valve and pulmonary valve. अब right ventricle से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पास होता है लंग्स तक। अब लंग्स में ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ब्लड के थ्रू वो एक्सचेंज होगी ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जो है वो पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां पर भी हमारी दो वाल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो मार्क की गई हैं, मिट्रल वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। ठीक है, यहाँ पे भी दो वाल्व्स प्रेजेंट है। अब इन वाल्व्स का देखो, दो वाल्व्स हमारी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट थी, दो वाल्व्स जो है वो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। अब इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है? इन वाल्व का फंक्शन ये है कि ये बैकवर्ड फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड अगर एक बार राइट वेंट्रिकल में एंटर कर गया तो वो वापस राइट आर्टरियम में नहीं जा सकता। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया तो वो लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा सकता। वॉल्व से वो पास हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो आउटर वाल्व से सारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। आउटर वाल्व की आप ओपनिंग देखो उस पिक्चर के अंदर, वो क्लियरली शो है कि वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, और उसके बाद अपर पोर्शन में भी आपको क्या है, तीन ब्लड वेसल्स जो है वो दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज द मेन आर्टरी विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and supplied to each and every part of the body. ये जो आउटर आर्टरी है ये हमारी फर्दर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और ये कैपिलरीज जो हैं वो अपने साथ ब्लड के साथ जो हैं, ये आर्टरीज जो हैं वो अपने साथ क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, एंड गैसेस को कैरी करती हैं। ठीक है, अब वहां से ये बॉडी के हर एक सेल तक जो है वो पहुंचता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पर एक्सचेंज, वहां पर फिर से क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स को सप्लाई करती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सारी चीजें, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस जो हैं ये सप्लाई करता है बॉडी के हर एक सेल को, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और वो उसको वापस कहां तक पहुंचाता है? हार्ट तक पहुंचाता है। दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी। होल बॉडी में इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो टेक प्लेस होता है। इन दिस वे ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग वन सर्कुलेशन इन होल बॉडी। ब्लड का एक सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कंप्लीट होने तक हार्ट में वो ब्लड फ्लो जो है वो 2 बार हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस
this circulation of blood in human body is known as double circulation. इसको क्या कहा जाता है? Double circulation कहा जाता है. Next topic is pulse. Pulse is basically your heart rate. Heart rate means number of time the heart is beating per minute in 1 minute, that is the pulse. Pulse is lower during the rest position and it increases when you exercise. Lower pulse rate indicates more efficient heart functioning. Now, the pulse is not felt everywhere, it feels only at certain places in your body. The main places where you feel your pulses or heartbeat is near wrist, neck, ankle, etc. The normal heart rate for the adults is 60 to 100 beats per minute. Therefore, beats per minute is in the short form is written as BPM. If we talk about in the early age groups, the age from 0 to 1 month, resting heartbeat or resting heart rate is 70 to 190 BPM. For 1 to 11 month baby, the resting heart rate is 80 to 160 BPM. For 1 to 2 years, the resting heart rate is 80 to 130 BPM. For 3 to 4 years child, the resting heart rate is 80 to 120 BPM. For 5 to 6 years, the resting heart rate is 75 to 115 BPM. 7 to 9 years child, 70 to 110 BPM, and above 10 years, it is 60 to 100 BPM. This is about the pulse. Now, the next is what are the disorders related to the circulatory system. The first one is hypertension. Hypertension is basically the state of high blood pressure. Second is heart attack. In the heart attack, when enough blood does not reach the heart, that is due to the basically the your veins or arteries get blocked. In that particular case, the blood is not enough, the enough blood is not able to reach the heart. In that case, heart muscles will get damaged and it affects the proper functioning of the heart. Now, the third disorder is heart failure. In that case, heart is not able to pump the enough blood according to the requirement of the body. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्ट अटैक के केस में ब्लड जो है वो मतलब प्रॉपर अमाउंट जितनी हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड को चाहिए होती है उतनी अमाउंट जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती. दैट इज द केस ऑफ हार्ट अटैक एंड दिस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज इन वेन्स. ठीक है, उसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से ये हैपन होता है जिसमें हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता. हार्ट फेलियर के केस में क्या है कि हार्ट जो है वो क्या है आपका इनफ ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा, उसको पंप नहीं कर पा रहा कि आपकी बॉडी की जो ब्लड बॉडी सेल्स की जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो. दैट इज द हार्ट फेलियर. कार्डियक अरेस्ट इज बेसिकली द हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग. हार्ट जो है वो सडनली फंक्शन करना स्टॉप कर दे या फंक्शन मतलब ब्लड की पंपिंग को स्टॉप कर दे अचानक से. दैट इज द कार्डियक अरेस्ट. दिस इज द लाइटर बिल्कुल स्लाइटर डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट. दीज थ्री आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स. दिस इज ऑल अबाउट द human circulatory system. Still, if you have any query in this chapter, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.